Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? You're fine. That's good. I welcome you in my class, that is English for grade 1. And we are going to start unit 10. Its title is The Goose That Laid Golden Eggs. My dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division of this unit. First we'll discuss about it and then we'll discuss what this story is all about. So in lecture 1, under the title of grammar, we are going to learn about punctuation and we'll cover the SLO to identify and revise written work for spelling and punctuation. Lecture 2, under the title of grammar, we'll learn about action words and we'll cover the SLO to physically respond to and use some action words. Lecture 3, we'll start reading and understanding the text and we'll cover the SLO to predict a story by looking at pictures, illustration in a text and listen to a story or fairy tale of a few sentences and read aloud by the teacher. Lecture 4 will complete reading and understanding of the text and will cover the SLO to respond orally in yes or no and their likes and dislikes about the story and characters. Read aloud the same story or fairy tale themselves and identify names and characters. Lecture 5, under the title of listening and speaking, we'll learn how to participate in conversation and we'll cover the SLO to participate in conversation. Lecture 6, under the title of reading and thinking skill, we'll learn how to read labels and we'll cover the SLO to read familiar words appearing on a variety of reading materials such as food labels, toy boxes, etc. So our focus will be food labels for this SLO. Lecture 8, under the title of writing, we learn to write sentences by using naming and action words and we'll cover the SLO to write appropriate naming and action words to identify an object or an action in a picture, show a series of actions in a picture by writing action words. So my dear fellow teachers and my dear students, this is the SLO based lecture division for this unit. Now let's see what this unit is all about. So my dear students, the title of the unit is The Goose That Laid Golden Eggs and its theme is ethics and values and its sub-theme is patience. Yes, my dear children, what are ethics and values? Ethics and value means अखलाकी इक़दार. बेटा हमें सरवाइव करने के लिए, हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक मुआशरे का अच्छा फ़र्द बनने के लिए कुछ ऐसे काम हैं जो हमेशा करने होते हैं, ठीक है. और उनमें से एक है पेशेंस, यानी कि सब्र का मुजाहरा करना. हर मौका पर हमें ये देखना है कि इस सिचुएशन में हम कहीं इम्पैशेंट तो नहीं हो रहे, हम जल्दबाजी से काम तो नहीं ले रहे, क्योंकि जल्दबाजी के काम का हमेशा अंजाम बुरा होता है. हमें पेशेंस के, जैसे अब पेशेंस की तो हर जगह पर बेटा, इसकी छोटी छोटी एग्जांपल्स हमारी रूटीन लाइफ में हर वक्त होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप कैंटीन पे गए, अब वहाँ क्यू है और आपको क्यू में जाकर खड़े होना है और अपनी बारी का इंतज़ार करना है. लेकिन अगर आप क्यू तोड़ते हुए जल्दी से चले गए तो यू डिड नॉट शो पेशेंस. ओके, सो आपको क्यू में खड़े होकर पेशेंस के साथ अपनी टर्न का वेट करना है. और बेटा ये एक ऐसा पेशेंस एक ऐसा अखलाकी वैल्यू है कि ऐसा एथिकल हमारा एस्पेक्ट है जिसको हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अल्लाह ताला उतना इसमें हमें बढ़ाते हैं और उतना ही ज़्यादा हमें नवाजते हैं. और अगर हम पेशेंस का मुजाहरा नहीं करते तो हम हमेशा नुकसान उठाते हैं. लेट्स सी इस थीम को इस स्टोरी में कैसे डिस्कस किया गया है. Once upon a time, एक मर्तबा का जिक्र है. An older man and his wife had a goose. एक बूढ़े आदमी और उसकी बीवी के पास एक गूस थी. गूस क्या होता है? Goose is a bird like this. Okay? बेटा ये एक बर्ड होता है जिसको उर्दू में हंसनी कहते हैं. हंसनी. Okay? It's a kind of bird. It's little different from duck, लेकिन ये डक ही की फैमिली, डक ही की तरह का एक बर्ड है और इसको हंसनी कहते हैं. तो उनके पास एक हंसनी थी. It was a very special, बहुत ख़ास हंसनी थी.
Every day it laid a golden egg. वो क्यों खास थी? क्योंकि हर दिन वो सोने का अंडा देती थी. The older man and his wife sold the eggs for a lot of money. वो ये जो बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ थे वो ये अंडा बहुत ज़्यादा पैसों का बेच देते क्योंकि ये सोने का था. They wanted more money. अब उनको और पैसा चाहिए था. They thought, उन्होंने सोचा, if our goose lays golden eggs, it must be made of gold. अगर हमारी हंसनी सोने का अंडा देती है तो ये खुद भी ज़रूर सोने की बनी है. We need to hurry. अब देखिए, we need to hurry. They become impatient. उन्होंने सब्र नहीं किया और उन्होंने जल्दबाजी की. And get all the golden eggs. हम जल्दी से सारे सोने के अंडे हासिल कर लेते हैं. We cannot wait for one egg daily. हम हर रोज़ एक अंडे का इंतज़ार नहीं कर सकते. Let us cut it and open it. चलो इसको काटते हैं और इसको खोलते हैं. Then we shall have more money. तो हमारे पास और बहुत सी रकम आ जाएगी. They killed the goose. उन्होंने हंसनी को मार दिया. And cut it open. और जब उसको चाक किया, alas, अफसोस, they found that it was just like any other goose. कि वो तो आम सी हंसनी की तरह ही निकली. They found no gold inside. उसके अंदर कोई सोना नहीं था. They did not get any more money. उन्हें मज़ीद कोई रकम ना मिली. In the end, they had nothing. और आखिर में उनके हाथ कुछ ना आया. An impatient person is always at loss. देखा बेटा कि उन्होंने बेसब्री का मुजाहिरा किया, जल्दबाजी का मुजाहिरा किया, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया. इसलिए बेटा हमेशा हमें सब्र से काम लेना है. और सब कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है. और सब्र की तलकीन तो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बहुत मर्तबा की है. जैसे ये देखें इस वर्स में, सूरह हूद वर्स 115. एंड बी पेशेंट. अल्लाह ताला कह रहे हैं सब्र करो, बी पेशेंट. For indeed Allah does not allow to be lost the reward of those who do good. क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं अल्लाह ताला उनका अजर ज़ाया नहीं करते. तो बेटा ये देखिए कितनी ये आसान काम नहीं है, लेकिन जब भी हम सब्र का मुजाहिरा करेंगे तो दुनिया में तो हम उसका फ़ायदा उठाते ही हैं, आखिरत में भी हमें उसका अजर मिलेगा. तो क्या हमें इम्पेशेंट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं. तो आज से हमने ये सीखा इस स्टोरी से कि हम हमेशा सब्र का मुजाहिरा करेंगे और उस सब्र के बदले में हम लोगों से ये नहीं कहेंगे देखो मैंने सब्र किया तुमने नहीं किया. नो नो बेटा, वी शुड वेट कि हमें उसका अजर जो है वो अल्लाह की ज़ात ने देना है. तो इंशाल्लाह जो अच्छी बातें हमने सीखी हैं इनको हम जहन में रखेंगे, इन पर अमल करेंगे, अपने छोटे बहन भाइयों को भी बताएंगे और ख़ुद भी इन पर अमल करेंगे. राइट. सो दैट्स इट. कल इंशाल्लाह हम ग्रामर के यूनिट से इसको ग्रामर के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.